السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ کہکشاں اردو کلاس 12 کا چیپٹر 5 کو پڑھ چکے تھے، اور درخشاں اردو کلاس 10 کا جو ہے اس کا بھی ہم لوگ 5 چیپٹر کر چکے تھے۔ تو آج میں آپ کو قواعد پڑھانے والا ہوں۔ تو اس سے پہلے ہم آپ کو بول چکے تھے کہ قواعد بہت جلد ہی شروع کروں گا۔ تو آج کی ویڈیوز میں ہم آپ کو قواعد پڑھائیں گے، بالکل شروعات سے پڑھائیں گے۔ آئیے ہم لوگ اچھے سے دیکھتے ہیں اردو قواعد کیا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، دیکھیے آپ کا اردو قواعد کا جو آپ کا سبق آپ کا پہلا ہے، یعنی 1 ہے چیپٹر۔ آئیے کیا ہے کہ قواعد اور اس کے اجزاء، یعنی اس کے حصہ کتنا ہے، اس کا باڈی کتنا ہے، سب کو آج ہم لوگ جاننے والے ہیں۔ آئیے قواعد کسے کہتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ جانیں گے۔ چلیے یہ آپ کا بیسک کلاس ہے قواعد کا، بالکل شروعات سے، ہے نا، یعنی آج کلاس آپ کا شروع ہوا قواعد کے لیے، ہے نا۔ چلیے سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے کہ قواعد کسے کہتے ہیں، ہے نا، قواعد کسے کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں قواعد کسے کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی زبان کو، کیا بولا ہے، کسی بھی زبان کو، یعنی زبان کوئی سا بھی ہو، ہے نا، کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے ان اصول کا جاننا ضروری ہے، اور انہی اصول کو ہم کیا کہتے ہیں، قواعد کہتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے ہم لوگ ہندی میں کیا بولتے ہیں، ویاکرن کسے کہتے ہیں، تو کیا ہم پڑھ چکے تھے کہ ویاکرن وہ شاستر ہے، وہ ہتھیار ہے جس کے مادھیم سے، جس کے ذریعہ کسی بھی زبان کو، کسی بھی بھاشا کو بولنا اور لکھنا سیکھتے ہیں، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ویاکرن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو اردو میں بولنا ہے، کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے ان اصول کو جاننا ضروری ہے، ان قانون کو، ان قواعد کو جاننا ضروری ہے، جنہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، انہی اصول کو ہم کیا کہتے ہیں، قواعد کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی زبان کو آپ سیکھنے جائیں گے، سب سے پہلے آپ کو جو ہے قواعد پڑھنا ہی پڑے گا، چاہے ہندی ہو، چاہے انگریزی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے نیپالی ہو، چاہے بنگالی ہو، کچھ بھی ہو، یعنی کسی بھی زبان کو آپ بولنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو قواعد ہی پڑھنا پڑے گا۔ قواعد پڑھ لیں گے تو آپ کسی بھی زبان کو جو ہے اچھے سے بول بھی لیں گے، لکھ بھی لیں گے، پڑھ بھی لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے، ہے نا۔ چلیے تو ہم لوگ کیا کریں گے، آج اردو کو جو ہے جاننے کے لیے سب سے پہلے قواعد کی ضرورت ہوتی ہے۔ قواعد جو اچھے سے پڑھیں گے تو آپ جو ہے مذکر مؤنث کا جو ہے فرق کر پائیں گے۔ آئے چلتے ہیں، کیونکہ قواعد جو ہے آپ کا ایگزام کوئی سا بھی ہو، ڈی ایل ایڈ کا ہو، سی ڈیٹ کا ہو، اسٹیٹ کا ہو، بی پی ایس سی کا ہو، یا پھر میٹرک انٹر کسی بھی ایگزام ہو، یعنی اردو کا اور ایگزام کے لیے میں پڑھاؤں گا آپ کو اردو قواعد، یعنی ہر ایگزام میں آپ کو جو ہے کام آئیں گے، یہ ہر کسی کے لیے ہے، ہر کوئی ویڈیوز کو دیکھ سکتا ہے نا۔ انٹر، میٹرک، ڈی ایل ایڈ یا پھر سی ڈیٹ، اسٹیٹ، جتنا بھی ایگزام ہے آپ کا اردو کا اور ایگزام کے لیے یہ آپ کا اردو قواعد ہے، کیونکہ میں آپ کو جو ہے بالکل شروعات سے پڑھانے والا ہوں، بالکل بیسک سے، یعنی آج کا کلاس آپ کا شروع ہوا ہے نا۔ چلیے، اور یہ آپ کو جو میٹرک اور انٹر میں جو ہے آپ کو جو 30 نمبر کا جو ہے پوچھ لیتے ہیں، کتنا نمبر کا، 30 نمبر کا پوچھ لیتے ہیں، ہے نا۔ بالکل باریکی سے پڑھیں گے، ایک ایک کر کے، ہے نا۔ آئیے بالکل آپ کو جو ہے دماغ کو جو ہے فریش کر لینا ہے، پھر سننا ہے۔ آئیے میں کیا کیا بول رہا ہوں آپ بس بولیے گا۔ چلیے کیا ہے یہ آپ کا قواعد کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ سب سے پہلے قواعد کسے کہتے ہیں، ہم کیا بولے ابھی، کسی بھی زبان کو، زبان کوئی سا بھی ہو، کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کا اصول یعنی قانون، قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ انہی اصول کو، انہی اصول یا قانون کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ قاعدہ کیا ہوتا ہے، قاعدہ جو آپ کا ہے یعنی قواعد کا کیا ہے، جمع ہے نا۔ یہ جو آپ کا ہے قواعد، جو آپ کا الفاظ ہے، یہ کیا ہے، آپ کا جمع الفاظ ہے، اس کا واحد کیا ہے، قاعدہ ہے نا۔ قاعدہ یہاں کیا لکھے ہم، دیکھیے قواعد جو ہے، قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ قواعد جو آپ کا ہے نا، یہ قاعدہ کا جو ہے نا، قاعدہ کی کیا ہے، جمع ہے۔ قواعد آپ کا جو الفاظ ہے یہ جمع الفاظ ہے، اور اس کا واحد الفاظ کیا ہے، قاعدہ ہے۔ تو ہم کیا بولے بھی، انہی اصول کو قاعدہ کہا جاتا ہے نا۔ تو ہم یہاں کیا لکھے ہیں، قواعد جو ہے قاعدہ کی جمع ہے۔ قواعد کون سا الفاظ ہے، یہ آپ کا جمع الفاظ ہے، اور قاعدہ جو آپ کا ہے یہ آپ کا واحد ہے، یعنی سنگولر ہے نا۔
चलिए, ये आपका कवायद जो आपका है क्या है, बहुवचन जिसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल, या फिर ये जमा है आपका, है ना। चलिए हम जान लिए पूरा क्या कवायद किसे कहते हैं, किसी भी जुबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए, है ना, उन उसूल को जानना जरूरी है। उन्हीं उसूल को हम क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं आपका अगला स्टार क्या कह रहा है, रस्मुल खत क्या होता है। अक्सर लोग जो है यहाँ पे, है ना, कंफ्यूज बोल नहीं पाते हैं कि रस्मुल खत क्या होता है ना। आइए, रस्मुल खत क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लिपि। क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं रस्मुल खत को हिंदी में। देखिए, है ना। आइए, क्या रस्मुल खत क्या होता है उसको हम जानते हैं। आइए, क्या बोला है कि हर जुबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। किसी भी जुबान को आप बोलिएगा तो उसकी अलामत है, निशान है। क्या है, निशान है। यानी रस्मुल खत आपको बता दे रहा हूं मैं पूरे खुल करके। जैसे कि आपका ये, जैसे कि अगर आपको बोले कि जिम लिखिए, आप जिम लिख करके दिखाइए, तो आप क्या लिखिएगा, जिम को अगर आप इस टाइप करके दिखा देंगे ये वाला, तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये ए हो जाएगा। अगर आपको बोले कि मीम को लिखिए, तो मीम इस टाइप आप लिख देंगे, चलेगा ये मीम, नहीं। अगर आपको बोले शीन लिखो, तो आप लिख दीजिएगा एस, चलेगा, क्योंकि इसका अलामत है ही नहीं, इसका निशान है ही नहीं, इसका पहचान है ही नहीं। अगर आपको बोले कि अलिफ लिखने के लिए, तो आपको जो है अलिफ की अलामत क्या है, ये आपका अलिफ की अलामत है, ये इसका अलामत है, निशान है, पहचान है, क्या अलामत ये है ना। अगर आपको बोले सी, तो आप अभी क्या बोले, आपको सा, देखिए ये आपका सा हुआ, ये आपका शीन नहीं है, क्योंकि ये एस है, तो शीन आपका, इसका अलामत ये है, तो ये आपका शीन हुआ, है ना। क्या बोला है, लिपि रस्मुल खत किसे बोला है, अलामत को ही बोला है, निशान को ही बोला है, पहचान को बोला है, शक्ल को बोला है। जैसे कि आप एस को, शीन को आप इस टाइप का लिख देंगे, तो ये क्या शीन हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि ये आपका ये एस है, शीन नहीं हुआ, क्योंकि इसका अलामत ये है ना। ये आपका सा हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये सी है, तो सा देखिए इसका अलामत क्या है, इसका निशान कैसा है, देखो शक्ल कैसा है इसका। ये आपका अलिफ, क्योंकि ये आपका ए हुआ, अलिफ नहीं हुआ, कि ये आपका सही है ये। इन्हीं अलामत को, इन्हीं निशान को देखिए, अलामत यानी पहचानना, शक्ल होना, आकार होना, है ना। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्मुल खत, इसी को बोलते हैं। रस्मुल खत क्या बोला है, हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है, निशान होती है, आकार शक्ल होती है ना, है ना। उन्हीं अलामत को, इन्हीं अलामत को, है ना, उन्हीं अलामत को रस्मुल खत कहा जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, है ना। चलिए आप बारीकी से इसको समझेंगे अच्छे से। आइए, चलिए क्या बोले हैं, रस्मुल खत यानी लिपि होता है हिंदी में, क्या बोले हैं, हर जुबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है, उन्हीं अलामत को रस्मुल खत कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं आप क्या है। देखिए हिंदी, हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। अगर आपको पूछे कि हिंदी जो है किस रस्मुल खत में लिखी जाती है, तो क्या बोलिएगा, हिंदी जो है देवनागरी, क्या देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, जबकि उर्दू और अरबी, देखिए उर्दू और अरबी फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। अगर आपको पूछे कि उर्दू किस रस्मुल खत में लिखी जाती है, तो क्या बोलिएगा, फारसी, क्या फारसी। और अरबी भी किस रस्मुल खत में, इसका भी लिपि कौन सा है, फारसी लिपि है। उर्दू और अरबी का जो लिपि है, रस्मुल खत है, तो फारसी है। क्या है, फारसी है ना। अगर आपको पूछे कि हिंदी देवनागरी रस्मुल खत है, जबकि उर्दू और अरबी जो है, क्या क्या उर्दू और अरबी का जो है फारसी रस्मुल खत में, है ना, लिखी जाती है ना। अगर आपको पूछे कि हिंदी का रस्मुल खत क्या है, तो देवनागरी बोलिएगा, और अगर आपको पूछे उर्दू का क्या है, तो क्या बोलिएगा, फारसी बोलिएगा, या फिर अरबी का बोलेंगे, तो फिर आपको फारसी ही बोलना है, क्योंकि उर्दू और अरबी का जो है रस्मुल खत फारसी ही है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला स्टार क्या कर रहा है, कि उर्दू जबान के दो खत है। देखिए उर्दू जबान के जो है दो खत है। आइए क्या क्या है, आपका जो पहला है खत्ते नस्ख, क्या खत्ते नस्ख, और दूसरा जो आपका है क्या, खत्ते नस्तालिक। अगर आपको पूछे कि उर्दू जबान के जो है कितने खत है ना, कितने खत है उर्दू जबान के, तो आप क्या बोलिएगा, दो खत है। तो क्या क्या है, तो क्या बोलिएगा, पहला आपका है खत्ते नस्ख, और ये आपका दूसरा जो है खत्ते नस्तालिक, क्या खत्ते नस्तालिक।
आइए फिर हम दोनों को जानते हैं खुल करके, बारीकी से एक करके। आइए चलिए क्या है, देखिए अगला पॉइंट आपका खत्ते नस्ख जो है, खत्ते नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है। देखिए खत्ते नस्ख बोला है, अरबी का क्या, अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि खत्ते नस्तालिक क्या, जबकि खत्ते नस्तालिक जो है फारसी का मशहूर तरीन खत है। देखिए फारसी जो है हम लोग उर्दू में लिखते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है, फारसी लिखा हुआ है ना, तो उर्दू जो है खत्ते नस्ख क्या होता है, अरबी लिखना है ना, जबान को टच करते हुए लिखना, जो आपका कुरान मजीद लिखा हुआ है ना, लाइन को जो है टच करते हुए लिखना, जिसे अरबी बोलते हैं, वो क्या आपका है खत्ते नस्ख। क्या बोले अभी हम, खत्ते नस्ख का अरबी का मशहूर क्या, अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि उर्दू, जबकि खत्ते नस्तालिक दूसरा वाला खत जो है फारसी का मशहूर तरीन खत है, जो अभी हम लिख चुके हैं अभी, है ना, आपको पढ़ा रहे हैं अभी, है ना। ये किसमें लिखा हुआ है, खत्ते नस्तालिक या फिर खत्ते नस्ख, तो आप क्या बोलिएगा, खत्ते नस्तालिक में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जबान लाइन को जो टच करते हुए नहीं लिखा है ना। चलिए है ना, समझ गए आप, खत्ते नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि दूसरा वाला खत्ते नस्तालिक जो है फारसी का मशहूर तरीन खत है। आइए फिर हम दोनों को जो है अलग करके जानते हैं, बारीकी से दोनों को अलग करके, है ना। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे खत्ते नस्ख। देखिए खत्ते नस्ख क्या है, इसको हम बारीकी से जानते हैं। आइए खत्ते नस्ख क्या है कि ये अरबी जुबान का, देखिए ये अरबी जुबान का जो है एक खत है। कौन, खत्ते नस्ख, ये अरबी जुबान का एक खत है, जिसे इब्ने मुकल्ला ने ईजाद किया था। अगर आपको पूछे कि खत्ते नस्ख का ईजाद यानी मुसन्निफ कौन है, राइटर लेखक कौन है खत्ते नस्ख का, तो क्या बोलिएगा, इब्ने मुकल्ला। किसने, इब्ने मुकल्ला ने इसको ईजाद किया है ना, आविष्कार किया है। ये दाएं से जो है बाएं तिरछे हरूफ में लिखे जाते हैं। क्या बोले हैं, ये दाएं से जो है बाएं, है ना, तिरछे हरूफ में लिखे जाते हैं, और दायरे यानी जो निशान है इसका, है ना, दायरे चपटे होते हैं। कुरान मजीद भी खत्ते नस्ख में लिखा हुआ है, क्योंकि अरबी में लिखा हुआ, लाइन को टच करते हुए लिखा जाता है अरबी को, इसलिए बोला है ना। ये अरबी जुबान का एक खत है, जिसे इब्ने मुकल्ला ने ईजाद किया था। ये दाएं से बाएं तिरछे हरूफ में लिखे जाते हैं, और दायरे चपटे होते हैं। कुरान मजीद भी खत्ते नस्ख में लिखा हुआ है ना। चलिए आइए इसको जो है ना लिख करके देखते हैं कैसा है ना, खत्ते नस्ख को जो है हम लोग लिख करके देखेंगे। आइए कैसे लिखा जाता है इसको, इसको तो इसका तरीका क्या है लिखने का। आइए ये देखिए इसका क्या तरीका है इसका, अल्हम्दु, देखिए हम्दु लिल्लाही, देखिए रब्बिल आलमीन, है ना। चलिए देखिए खत्ते नस्ख का जो है लिखने का तरीका क्या है, इसका स्टाइल क्या है, देखिए लिखने का। देखिए लाइन को टच करते हुए हम लिखे इसको, है ना। ये अरबी है, क्योंकि अरबी को जो है लाइन को जो है टच करते हुए लिखना पड़ता है, जो खत्ते नस्ख के अंतर्गत आता है ना। चलिए इसका जो दायरा है क्या होता है, चपटा होता है, क्या चपटा इस टाइप का, देखिए ये पूरा चपटा है, इस टाइप का होता है ना। देखिए आइए देखते हैं आपको अगला स्टार क्या कह रहा है, खत्ते नस्तालिक क्या होता है। ये खत्ते नस्तालिक है ना, खत्ते नस्तालिक जो है अमीर अली तबरेजी, है ना, इस खत के मौजूद है, यानी इसको ईजाद किया था, यानी ये अस्तित्व में आया था। कब कौन लिखा इसका, देखिए अमीर अली तबरेजी। अगर आपको पूछे कि खत्ते नस्तालिक का जो है मुसन्निफ कौन है, इसका मौजूद कौन है, इसको कौन ईजाद किया था, तो क्या बोलिएगा, अमीर अली तबरेजी, है ना, अमीर अली तबरेजी। और जो आपका खत्ते नस्ख जो है ये किसने लिखा है, तो क्या बोलिएगा, इब्ने मुकल्ला ने किया। कौन, इब्ने मुकल्ला ने ईजाद किया था, जबकि खत्ते नस्तालिक को जो है अमीर अली तबरेजी ने, क्या अमीर अली तबरेजी ने जो इसको, है ना, इस खत को जो है ना, ये लिखा है, मुसन्निफ है इसका, है ना। चलिए ये देखिए ये फारसी रस्मुल खत है। कौन, खत्ते नस्तालिक जो है, खत्ते नस्तालिक क्या है आपका, ये आपका फारसी रस्मुल खत है ना। चलिए ये आपका है जो ईरान में वजूद में आया, यानी अस्तित्व में आया, यानी इसका पैदाइश कहाँ हुआ, ईरान में, है ना, जो ईरान में वजूद में। अगर आपको पूछे खत्ते नस्तालिक का वजूद जो है कहाँ हुआ है, तो क्या बोलिएगा, ईरान में। कहाँ, ईरान में, है ना, ईरान में इसका जो है वजूद में आया। आइए इसके बाद क्या है कि उसके दायरे, देखिए उसके दायरे
खुशनमा होते हैं, यानी पूरे गोल है ना, यानी पूरे गोल इस टाइप का। देखिए ये पूरे गोल है, बीच में पूरे खुशनमा है, जगह है ना। लेकिन अरबी में क्या थे, इसका चपटा था, देखिए इस टाइप का चपटा है ना। देखिए ये अरबी का जो है ये चपटा है, और जो फारसी यानी उर्दू का जो है ये पूरे खुशनमा है, यानी पूरे गोल बना हुआ है ना। चलिए यहाँ क्या पढ़े थे, देखिए और दायरे चपटे होते हैं, किसका, खत्ते खत्ते नस्ख का है ना। ये आपका खत्ते नस्तालिक है, जिसका ये दायरा क्या है, इसका खुशनमा है, पूरे गोल है इसका, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या आपका, ये रहा आपका उर्दू का माने लश्कर होता है। अगर आपको पूछे उर्दू के माने लश्कर, उर्दू का माने क्या है तो क्या बोलिएगा, लश्कर है। तो लश्कर क्यों है, देखिए उर्दू का माने लश्कर क्यों है, क्योंकि उर्दू में जो है ना काफी बहुत सारे जबान जो है जबान शामिल है, क्योंकि उर्दू है, हिंदी है, अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, इंग्लिश भी है, अंग्रेजी भी है ना, हर जबान इसमें क्या है शामिल है उर्दू में, इसलिए है ना। कई जबानें जो है शामिल होकर के उर्दू का जो है ईजाद हुआ है, इसलिए जो है उर्दू का माने क्या है, लश्कर है। क्या है, लश्कर है ना। चलिए और जो है कहीं पर क्या आता है इसका, उर्दू का माने जो है खिचड़ी भी, क्या खिचड़ी भी होता है, क्या खिचड़ी भी होता है। और यहाँ क्या लिखा है, उर्दू का माने लश्कर भी होता है और खिचड़ी के भी होता है ना। चलिए और क्या है आपका, और इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती नाम है ना, मंदरजा झेल है ना। चलिए आइए देखते हैं उर्दू को जो है किस किस नाम से जाने जाते हैं। आइए देखते हैं, सबसे जो पहला आपका है हिंदी। देखिए उर्दू का नाम पहला हिंदी क्या है, हिंदी भी नाम है उर्दू का, और हिंदवी भी। देखिए उर्दू को जो है हिंदवी नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। चलिए और क्या है, जबान दहली। देखिए उर्दू को जो है जबान दहली के नाम से भी जानते हैं। और उर्दू का दूसरा नाम क्या है आपका, दखनी भी नाम है उर्दू का। और ये आपका है उर्दू का उर्दू मुअल्ला। देखिए उर्दू मुअल्ला भी है और रेख्ता भी है। और ये आपका सातवां जो है उर्दू नाम है। देखिए हम लोग जो है उर्दू के नाम से जानते हैं, बट ये जो है आपका जो 6 है, ये जो है अदर देश में यानी बाहरी देश में जो है इसको यूज करते हैं, है ना। कोई जो हिंदी के नाम से उर्दू को जानते हैं, या फिर हिंदवी के नाम से, जबान दहली के नाम से कहीं बोल रहे होंगे ना, कहीं पे दखनी के नाम से उर्दू को जानते हैं, या फिर उर्दू मुअल्ला के नाम से, या फिर कहीं रेख्ता के नाम से। लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग किस नाम जानते हैं इसको, उर्दू को उर्दू के नाम से जानते हैं, है ना। उर्दू का देखिए कई नाम है, यानी कई जुबानें इसमें शामिल है, इसलिए क्या बोला है, उर्दू का माने क्या बोला है, लश्कर होता है। क्या होता है, लश्कर होता है ना। तो लश्कर क्यों होता है तो क्या बोलिएगा, क्योंकि उर्दू को जो है, उर्दू का जो है कई जबानें मिलकर के उर्दू का जो है ईजाद हुआ है, इसलिए जो है उर्दू का माने क्या है, लश्कर होता है ना। चलिए आइए देखते हैं शुरू से देखते क्या है। सबसे पहले हम क्या जाने थे, कवायद क्या होता है। कवायद हम जान लेते। कवायद किसी भी जबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उन उसूल है ना, उन उसूल का जानना जरूरी है। उन्हीं उसूल को हम लोग क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं। तो हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं, देखिए कवायद जो है आपका जमावट है, तो कवायद जो है कायदा की जमा है। कायदा जो आपका है वाहिद, क्या है, वाहिद है, और कवायद जो आपका है जमा है, इसलिए बोला है कवायद जो है कायदा की जमा है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, रस्मुल खत यानी लिपि। रस्मुल खत क्या होता है, हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है, निशान होती है, आकार होती है ना, हर जबान को। उन्हीं अलामत को हम लोग क्या कहते हैं, रस्मुल खत कहा जाता है। आगे क्या पढ़ते देखिए, हिंदी क्या है आपका देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, जबकि उर्दू और अरबी जो है फारसी, क्या उर्दू और अरबी जो है फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, उर्दू जबान के 2 खत है। कितने खत है, 2 खत है, खत्ते नस्ख और खत्ते नस्तालिक। खत्ते नस्ख क्या है, आपका अरबी का है, ये खत्ते नस्तालिक क्या है आपका फारसी का है ना। आज देखते हैं खत्ते नस्ख जो है अरबी का। देखिए अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि खत्ते नस्तालिक जो है फारसी का मशहूर तरीन खत है। आगे क्या पढ़े थे हम लोग, आगे बढ़े थे खत्ते नस्ख। देखिए ये अरबी जुबान का एक खत है जिसे इब्ने मुकल्ला ने इजाद किया था, है ना। ये दाएं से बाएं और है ना तिरछे हरूफ में लिखे जाते हैं, और दायरे क्या होते हैं, चपटे, क्या चपटे होते हैं, है ना। कुरान मजीद भी जो है खत्ते नस्ख में लिखा हुआ। अगर आपको पूछे कुरान मजीद जो है ना, कुरान मजीद जो है किस खत में लिखा हुआ है तो क्या बोलिएगा, खत्ते नस्ख में, क्या खत्ते नस्ख में लिखा हुआ है ना। चलिए जैसे देखिए आपको लिख के दिखा दिया है, क्या ये देखिए लाइन को टच करते हुए लिखे हम। देखिए ये आपका खत्ते नस्ख है, क्योंकि लाइन को टच करते हुए इसको हम लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आपका खत्ते नस्तालिक क्या है।
امیر علی تبریزی, دیکھیے خط نستعلیق جو ہے امیر علی تبریزی اس خط کے موجد ہے, یعنی اس کو ایجاد کیا تھا, ہے نا. اس کا مصنف کون ہے؟ امیر علی تبریزی ہے نا. چلیے, یہ فارسی رسم الخط ہے. کیا ہے یہ؟ فارسی رسم الخط ہے جو ایران میں کیا ہوا تھا, وجود میں, ہے نا. ایران میں کیا ہوا تھا, اس کا وجود میں آیا, یعنی استتو ہوا, اس کا پیدائش ہوا کہاں ایران میں. آئیے اس کے بعد کیا ہے, اس کے دائرے خوشنما ہوتے ہیں, یعنی پورے گول, ہے نا, پورے گول خوشنما ہوتے ہیں. اس خط میں بھی دیکھیے, اس خط میں بھی کیا ہوتا ہے, کئی خط شامل ہے نا, کئی خط شامل ہے. چلیے اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ, اردو کا معنی کیا ہوتا ہے, لشکر ہوتا ہے نا. اس کے بعد اور ابتدائی نام یعنی شروعاتی نام مندرجہ ذیل ہے, یعنی نیچے لکھا ہوا ہے. آئے دیکھتے کیا ہے, ہندی تھا آپ کا, ہندوی تھا, زبان دہلی دکنی, یا آپ کا اردو معلّہ, ریختہ اور اردو. دیکھیے کئی نام سے اس کو جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں, کیونکہ اردو کا معنی لشکر اس لیے ہے کیونکہ اس میں کئی زبانیں شامل ہے. اردو ہے, ہندی, عربی ہے, فارسی ہے, انگلش ہے, جتنی بھی زبانیں ہیں کئی زبان مل کر کے جو ہے اردو کا جو ہے ایجاد ہوا ہے, اس لیے بولا ہے اردو کا معنی لشکر ہوتا ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. چلیے آپ کا یہ رہا, آپ کا اگلا اسٹار کیا کہہ رہا ہے کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی, ہے نا, زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے. دیکھیے حرف کیا ہے, حرف کو ہم لوگ جو ہے توڑ نہیں سکتے, کھنڈ میں ٹکڑا نہیں کر سکتے, ہے نا. کیا زبان کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہے نا, سب سے چھوٹی اکائی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, حرف کہا جاتا ہے. اگر آپ کو پوچھے کہ حرف کسے کہتے ہیں تو آپ کیا بولیے گا, زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو ہم کیا کہتے ہیں, حرف کہتے ہیں. ہم لوگ ہندی میں کیا پڑھ چکے تھے, ورن. کیا بولتے ہیں, ورن بولتے ہیں حرف کو ہندی میں, ہے نا. ورن کیا بولے, یعنی ورن, یعنی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو ہم کیا کہتے ہیں, ورن کہتے ہیں. یا پھر اردو ہم کیا بولیں گے, زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو ہم کیا کہتے ہیں, حرف کہتے ہیں, جسے ٹکڑا یا کھنڈ یعنی حصہ نہیں کر سکتے, ہے نا. چلیے یہ آپ کا کیا, جیسے کیا ہے آپ کا الف, دیکھیے الف, با, تا, تا وغیرہ, یہ جو آپ کا حرف ہے اس کو ٹکڑا کھنڈ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا اور کھنڈ ہے ہی نہیں, ہو نہیں سکتا. الف کا زبان کی جو ہے سب سے چھوٹی جو اکائی ہے نا, زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو ہی کیا کہتے ہیں, حرف کہتے ہیں, جسے ہم لوگ ٹکڑا یا کھنڈ نہیں کر سکتے. کیا آپ کا الف ہے, با ہے, تا ہے, سا ہے. دیکھیے حرف مل کر کے آپ کا لفظ بن سکتا ہے, بٹ کیا ہے کہ حرف کو آپ توڑ نہیں سکتے ہیں, لفظ کو توڑ سکتے ہیں آپ, ہے نا. چلیے اب دیکھیے کیا آپ کا اگلا شعر کہہ رہا ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں, لفظ کسے کہتے ہیں. جسے ہندی ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ہندی میں شبد بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, شبد بولتے ہیں ہندی میں, اور انگلش میں کیا بولتے ہیں, ورڈ. کیا بولتے ہیں, ورڈ بولتے ہیں انگلش میں. یا آپ کا لفظ کسے کہتے ہیں, کیا بولا ہے, دیکھیے حرفوں کے مجموعہ کو, دیکھیے حرفوں کے مجموعہ کو ہم کیا کہتے ہیں, لفظ کہتے ہیں. یعنی کئی حرف مل کر کے جو ایک لفظ کو پیدا کرتا ہے وہی کیا کہتا ہے, لفظ کہلاتا ہے نا. آئے دیکھتے ہیں کیا آپ کا, جیسے کیا ہے کہ دیکھیے را جور, را آپ کا ایک حرف ہے, جور الف جور تا برابر کیا ہوا, یہ آپ کا رات ہوا. یہ جو آپ کا رات جو آپ کا لفظ ہے نا, اس لفظ کے اندر میں کئی حرف شامل ہے, کیونکہ آپ کا را حرف ہے, الف ہے, تا ہے, یعنی تین حرفوں کے مجموعے کو جو ہم لوگ کیا بولے ہیں, رات کو جو بنایا ہے, تو رات کیا ہوا آپ کا, لفظ ہوا. کیونکہ رات کے اندر جو ہے تین حرف کیا ہے, شامل ہے, یعنی تین حرف کو جوڑ کر کے جو ہے ایک رات کو ہم تیار کیے. ایک رات جو ہے آپ کا کیا ہے, یہ آپ کا لفظ ہے. جب اس کو ہم کھنڈ کریں گے, توڑیں گے, تو آپ کا حرف پیدا ہوگا. دیکھیے کئی حرف مل کر کے ایک لفظ کو پیدا کیا, ہے نا. تو کیا بولا ہے, حرفوں کے مجموعہ کو, کئی حرف ملا کر کے ایک لفظ کو پیدا کرنا ہی لفظ کہلاتا ہے نا. کیا حرفوں کے مجموعہ کو ہم کیا کہتے ہیں, لفظ کہا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ ہندی میں شبد بولتے ہیں, ہے نا, ہے نا. چلیے آئے دیکھتے ہیں آپ کا اگلا کیا ہے, جملہ. اب دیکھیے جملہ کسے کہتے ہیں, حرف سے مل کر کے ایک لفظ کو پیدا کیا. اب کئی لفظ مل کر کے ایک جملہ کو پیدا کرے گا, ہے نا. چلیے آئیے کیا بولا ہے, لفظوں کے مجموعہ کو. دیکھیے لفظوں کے مجموعہ کو ہم کیا کہتے ہیں, جملہ کہتے ہیں. جسے ہم لوگ ہندی میں کیا بولتے ہیں, واقع بولتے ہیں, اور انگلش میں کیا بولتے ہیں, سینٹینس بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, سینٹینس بولتے ہیں, ہے نا. چلیے جملہ کیا ہوتا ہے, لفظوں کے مجموعہ کو, یعنی کئی لفظ مل کر کے ایک جملہ کو پیدا کرنا. لفظوں کے مجموعہ کو ہم کیا کہتے ہیں, جملہ کہتے ہیں. جیسے کیا بولا ہے, دیکھیے حامد, حامد ایک اچھا لڑکا ہے. دیکھیے حامد ایک اچھا لڑکا ہے, جو آپ کا جملہ ہے اس میں کئی لفظ شامل ہے. دیکھیے حامد آپ کا ایک لفظ ہوا, ایک جو آپ کا ہے دوسرا لفظ ہوا, اچھا آپ کا تیسرا لفظ ہوا, یہ آپ کا جو لڑکا ہے یہ آپ کا چوتھا لفظ ہوا, یہ آپ کا ہے جو ہے آپ کا پانچواں لفظ ہوا. کیونکہ اس میں پانچ لفظ کو جو ہے ملا کر کے ایک جملے کو پیدا کیا.
क्या क्या हामिद एक अच्छा लड़का है ना। चलिए देखिए, हम जुमले को जो है तोड़ सकते हैं लफ्जों में, फिर लफ्ज को भी तोड़ सकते हैं हरफों में, लेकिन हरफ को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम क्या पढ़े थे, जबान की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, हर्फ कहा जाता है। और कई हर्फ मिल करके एक लफ्ज को पैदा करता है, और फिर कई लफ्ज मिल करके एक जुमले को जो है पैदा करता है ना। आइए देखें, यहाँ देखिए हर्फ, रात में कितना हर्फ था, 3 था, तो एक रात को पैदा किया है ना, एक रात को जो है एक लफ्ज को तैयार किया। फिर देखिए अब कई लफ्ज मिल करके क्या बोला है, हामिद एक अच्छा लड़का है। इस जुमले में जो है आप अगर लफ्ज को काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे, तो हामिद आपका एक लफ्ज हुआ, एक है ना, आपका दूसरा लफ्ज हुआ, या आपका अच्छा जो आपका तीसरा हुआ, और लड़का जो आपका चौथा हुआ, या आपका है जो आपका पांचवा है। यानी 5 जो है लफ्ज मिलकर के एक जुमले को पैदा किया है, क्या, हामिद एक अच्छा लड़का है ना। चलिए आगे देखिए, आपका क्या कह रहा है अगला स्टार, कि उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी हम लोग उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। वैसे उर्दू में हम लोग क्या बोलते हैं, हुरूफ तहज्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुरूफ तहज्जी बोलते हैं। आप देखिए हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितना है, तो पूरे 52 है, क्योंकि हिंदी में भी आपको वर्णमाला 52 ही है। हम लोग हिंदी में क्या पढ़ चुके थे, वर्णों के मजमुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं ना। वर्ण के कर्मबद्ध समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए हुरूफ तहज्जी जो है, देखिए आपका उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी कितना है, तो क्या बोलिएगा, कुल 52 है। कितना है, 52 है। और हिंदी में भी कितना है आपका, 52 है। और इंग्लिश में कितना आपका, 26 है। ABCD आपका 26 है। हिंदी में क्या आपका, को खो गो जो आपका है, ये आपका पूरे 52 है। और आपका उर्दू में क्या है, हुरूफ तहज्जी जो है आपका अलिफ बा ता सा वगैरह, ये जो आपका पूरे 52 है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए ये आपका अगला शब्द क्या है, हुरूफ मुफरद की तादाद कितना है। देखिए 52 में से जो है आपको 37 को निकालना है, अलग करना है। 37 को अलग कीजिए, फिर इसके बाद 15 को जोड़ना है। 37 और 15 कितना हुआ आपका, पूरे 52 हो रहा है। कितना हो रहा है, पूरे 52 आपका हो रहा है ना, जब इसको जोड़िएगा है ना। चलिए आइए देखिए, 52 में से जो है 2 खंड क्या है, 2 हिस्सा क्या है, हुरूफ मुफरद या आपका 37 है, हुरूफ मुरक्कब या आपका 15 है। 15 और 37 को जोड़ेंगे जो आपका जो है कुल कितना होगा, 52 होगा पूरा है ना। चलिए आइए देखते हैं कि आपका हुरूफ मुफरद क्या होता है, यानी ये पूरे अकेला हरफ, क्या ये खुद का अकेला है ना, क्या है, अकेला है। आइए ये आपका आ हुआ, उसके बाद क्या है आपका अलिफ है, बा है, पा है, ता, टा, सा है ना। चलिए ये आपका जीम, ये आपका चा, ये आपका हा है, हा, दाल, डाल, जाल है ना। चलिए ये आपका रा है, ये आपका रा है, जा है, सीन, शीन, सौद, ये आपका जौद है, ता, जा, आइन, गैन, फा, काफ, ये आपका काफ है, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, ये आपका हमजा, ये आपका या है ना। कितना है आपका, पूरे आपका 37 है। कितना है, 37 है ना। अगर आपको पूछे हुरूफ मुफरद की तादाद कितना है, तो क्या बोलिएगा, हुरूफ मुफरद जो आपका 37 है। कितना है, 37। अगर आपको पूछे हुरूफ तहज्जी कितना है, तो क्या बोलिएगा, 52 है। अगर आपको पूछे मुफरद कितना है, तो क्या बोलिएगा, 37 है। अगर आपको पूछे कि मुरक्कब कितना है, तो बोलिएगा 15 है। आइए देखते हैं आपका अगला शब्द क्या है, हुरूफ मुरक्कबा। देखिए हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितना है, पूरे 15 है। कितना है, 15 है। ये सारे हुरूफ, देखिए ये जो 15 है बोला, ये सारे हुरूफ क्या है, हिंदी जुबान के है। क्या, हिंदी जुबान के। अगर आपको पूछे हुरूफ मुरक्कब जो है ये किस जुबान का है, तो क्या बोलेगा, हिंदी जुबान का है। क्या है, ये हिंदी जुबान का है। ये सारे हुरूफ क्या है, हिंदी जुबान का है ना। आइए देखते हैं पूरे 15 है, क्या क्या है। देखिए भौ है, बा में हे लगा, भौ। देखिए 2 आप शामिल है। मुरक्कब क्या होता है, मिले हुए हरफों को हम लोग क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। मुफरद क्या होता है, पूरे अकेलापन होना, इसमें मिला हुआ है। देखिए बा, हा, तब भौ बना है ना। यानी 2 हरफ इसमें शामिल है, इसलिए मुरक्कब बोला है। मिले हुए हरफ क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। आइए ये आपका बा में हे लगा, भौ बना। या आपका पा में हे लगा, क्या, फौ। या आपका है ता में हे लगा, थौ। या आपका टा में हे लगा, ठौ। या आपका जिम में हे लगा, झौ। या आपका चा में हे लगा, क्या, छो बोलेंगे। उसके बाद क्या है आपका, दाल में हे लगा, ढौ है ना। हम लोग हिंदी पढ़ चुके हैं ना। या आपका डाल में हे लगा, ढौ। या आपका रा में हे लगा, अढ़ौ है ना, अढ़ौ हुआ। या आपका रा में हे लगा, अढ़ौ हुआ। या आपका का में हे लगा, खो। या आपका गा में हे लगा, घो बना। या आपका लाम में हे लगा, लो।
آپ کا میم میں ہے لگا 9 اور آپ جو ہے نون میں ہے لگا 9 ہے نا. یہ پورے 15 ہے نا. یہ پورے کیا ہے آپ کا ہندی حروف ہے. کیا ہے ہندی حروف ہے. اس کا کتنا تعداد ہے اس کا یہ سنکھیا کتنا ہے اس کا پورے 15 ہے. کتنا ہے یہ آپ کا پورے 15 ہے. اگر آپ کو پوچھے کہ حروف مرکب کتنا ہے تو 15 بولیے گا. اگر آپ کو پوچھے کہ حروف مفرد کتنا ہے تو 37 بولیے گا. اگر آپ کو پوچھے کہ حروف تہجی کتنا ہے تو پورے آپ 52 بولیے. کتنا بولیے گا پورے 52 آپ کو بولنا ہے نا. چلیے یہ تھے آپ کا بیسک یعنی اردو قواعد کا جو ہے بیسک کلاس تھا. بالکل شروعات سے ہم شروع کیے ہیں نا. اب اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے دیکھیں قواعد کسے کہتے ہیں یہ تو ہم جان گئے پڑھ بھی لیے ہے نا بیسک پڑھ لیے. اب ہم لوگ کیا اگلے کلاس میں کیا کریں گے قواعد کی جو ہے کتنی قسم ہے اس کو ہم لوگ اچھے سے پڑھیں گے پورے ڈیٹیل کے ساتھ ہے نا. اچھے سے باریکی سے پڑھیں گے اگلے ویڈیوز میں. لیکن یہ آج کا ہے آج کا بیسک کلاس تھا. اچھے سے کو پڑھ لیا آپ لوگ اچھے سے سمجھ جائیے اور اچھے سے نوٹ کر لینا ہے بڑھیا سے. چلیے اگر ویڈیوز پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل والے آئیکن کو پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو جو آپ سب سے پہلے پہنچ سکے ہے نا. چلیے آپ کی جو ہے اب کی بار میں قواعد بھی شروع کر دیا ہوں. اب باری باری سے جو ہے اس کو بھی میں پڑھاؤں گا ہے نا. چلیے پھر ختم کرتے ویڈیوز کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.